ठीक है मैम, आप स्क्रीन शेयर करके और वेबकैम ऑन करके आप पढ़ा लीजिए। Excuse me, sir. The students have access. Hello, yeah, Mm, Dhwani. Good evening, ma'am. Ma'am, actually, we are having access of removing the students. Please tell sir to remove the access from us. Okay, yes, yes, yes. Yeah. Yeah, sure, I'll do that. आनंद सर, बच्चों से प्लीज एक्सेस ले लो, फिर कल की तरह दोबारा से क्लास डिस्टर्ब होगी। हेलो। हेलो। Ma'am, actually, sir have left the chat. Okay, maybe he's traveling, so that's why. We're going to start in 2 to 3 minutes, okay? Let's others join and tell students to join the class as number is come. तानिया मैडम, आप हेलो। स्क्रीन शेयर कीजिए और वेबकैम ऑन कर ली कीजिए। ठीक है सर। एक्चुअली अभी मैं कर रही थी, अभी हो नहीं रहा था, मेरे पास एक्सेस ही नहीं था। हाँ, वो एक्चुअल में सभी प्रेजेंटर बने हुए थे ना, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लो अब। ओके 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 ओके, ठीक है। Just give me a second, I'm doing it. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So today we, first of all, very good evening to one and all. Good evening, ma'am. कैसे हैं आप सब? Ma'am, we are good. How are you? I'm good too. Thank you. Chalo. So today we'll be completing our unit number 7, the last unit that we have left with. उसमें ऐसे ज़्यादा कोई भी topics नहीं है, okay? Hardly 2 to 3 topics are there. So the unit has basically what are the regulations and what are the organizations जो advertising में deal करते हैं, ठीक है? So first thing that we're going to study in this particular unit is advertising agency.
and its functions. एजेंसी क्या होती है ना, और उसके functions क्या क्या होते हैं, and how we need to choose a right agency for our according to our advertisement. then उनका क्या compensation होगा, क्या legal, ethical और social aspects क्या क्या होते हैं उनके. ठीक है, so hardly we need to study only 3 topics in that. ठीक है, the shortest unit. So are you guys aware what the agency is? Yes, ma'am. An independent organization or a firm. Hmm. And in Okay. terms of advertising agency, uh, it will be a agency or an organization which will provide the services to advertise about a brand. Mm-hmm. Okay. So normal agency क्या होती है? If हम agents कौन होते हैं? From agent we got the word agency, है ना? Yes, ma'am. हमने किसी एजेंट के बारे में देखा होगा तो हम बोलते हैं ना ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं. So what does it mean? बोलो. Agents are the people who approach certain individuals. एक एक पार्टी के बिहाफ पे दूसरी पार्टी को अप्रोच करती है टू डू देयर ड्यूटीज, मतलब Mediator. जैसे हाँ सॉरी बोलो. Ma'am, I said mediator. Yes, या absolutely. मीडिएटर. The correct word for the agents or the agency is a mediator, है ना? For let's say अगर हम ये देखते हैं कि कोई होलसेलर होता है ना, मैन्युफैक्चरर होता है, रिप्रेजेंटर. या रिप्रेजेंटेटिव एज वेल. जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, है ना, या फिर आप एजेंट्स के थ्रू अब्रॉड जाते हो, या फिर आप ब्रोकर्स के थ्रू आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, राइट? तो वो ब्रोकर्स और वो जो बाहर बेचने वाले जो लोग होते हैं वो, सो दीज ऑल आर द एजेंट्स. मतलब अगर आप कोई भी काम करो तो मिडल मैन का जो काम करता है ना, वो आपके लिए एजेंट्स हो जाते हैं. ठीक है. यस मैम. बस एक सेकेंड दो मुझे. या ठीक है, तो एजेंट बेसिकली आता मिडल मैन जिनके थ्रू हम अपना काम फुलफिल कराते हैं या कंप्लीट करते हैं, है ना? कोई एक बंदा होता है जिसको आप नहीं जानते लेकिन आपको काम कराना होता है, बट ही इज अ पर्सन हु नोज बोथ द पार्टीज, है ना? फॉर लेट्स अगर आपको कोई भी घर खरीदने जाना है या आपको रेंट पे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, राइट? सो फॉर दैट आपको तो नहीं पता ना कि कौन है वहां पर मार्केट में जो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है, and even sellers also don't know कि who are the actual buyers in the market, right? लेकिन जो brokers होते हैं, middlemen होते हैं, उनको पता होता है क्योंकि उनका काम ही है. This is their job only. So job के बारे में सबको आइडिया रहता है कि किसको करना है, किसको चाहिए, कौन बेच रहा है, किसको खरीदना है, right? So the one who knows both the parties and have the ability to crack the deal is known as the agent. ठीक है? यस मैम. Now in terms of advertising, so advertising agencies क्या होती हैं? Ma'am, I don't know the exact, but what I can, but but what I can say is some agency where we can go and share our idea, and through those idea they can make or give us the sample of advertisement like this we can do for you Ma'am, they something. plan how to be creative about our brand and advertise on behalf of the brand. They will conduct Okay. a research and they Hmm. will analyze how the consumer behave, and then they will execute some campaign Hmm. to Okay. The build company, brand awareness.
I think the company only have a idea like what they want, and they want to grow, how they want to grow. So that agency will guide them basically. They also act as Okay. a bridge between the brands and the consumers. Okay. Yeah. Right. ठीक है. So basically advertising agencies कौन होती है बेटा? These are the some independent organizations होती हैं जो provide करती हैं specialized service to the clients. है ना? अब हमारे client कौन हो गए? Who are the client? Consumers. जिन्होंने no, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड तो जिनको हमारे जो हाँ ओनर्स हैं जिनको एडवर्टाइजिंग शो करनी है वो हुए ना, मेकर्स हुए, companies, yes ma'am, those who want to कंपनीज जो, extend. हाँ yes, those who want to run the advertisement or different social medias, है ना. अब सोशल मीडिया आपके लिए क्या हो गए हैं? एजेंट्स, है ना, बिकॉज दीज आर द मिडिल मैन. आपने एडवर्टीजमेंट तो बना ली, लेकिन आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचोगे कैसे? अपने बायर्स के पास पहुंचोगे कैसे? फॉर दैट यू नीड समथिंग, यू नीड सम ब्रिज, राइट, सम ब्रिज टू Yes, क्रॉस. तो ma'am. अब वो ब्रिज का काम कौन करेगा? एजेंट्स काम करते हैं. ठीक है. अब वो प्लान करते हैं, क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं आपके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को, जो वो आपके टारगेट ऑडियंस को फिर बाद में फ्यूचर में शो करेंगे. क्लियर है? Yes, ma'am. Basically, advertising agencies are an independent organizations, or we can say firms, those who provide specialized services to basically the makers for their clients. अब उसमें उनको प्लानिंग क्या करनी है, कैसे एडवर्टीजमेंट क्रिएट करनी है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसे एवेल्युएट करना है, कैसे कैंपेन को रन करना है, एवरीथिंग द एजेंट्स विल डू. ठीक है. तो बेसिकली आपके जो एजेंट्स होते हैं वो एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर हेल्प करते हैं कंपनीज को टू कम्युनिकेट विद द टारगेट ऑडियंस थ्रू वेरियस मीडियाज. ठीक है. Yes, ma'am. अभी किसी को डाउट है? व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज? No, ma'am. किसी को कंफ्यूजन जो ना समझ में आया, शुड आई रिपीट अगेन और शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. We can move forward. Okay. So basically, this is the meaning of advertising agency. Quickly read it. पढ़ लिया बच्चा सबने? yes ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Now, what are the different functions for it? Okay. So first one is market research. See, in the definition or in the meaning, we have come across that it's an organization that provides specialized services in planning, creating, and executing and evaluating. ठीक है. अब planning का part क्या होता है? Before actually performing the work, we need to plan. है ना, कि हमें एक्चुअली काम कैसे करता है. वी नीड टू प्लान और वी नीड टू जॉट डाउन द थिंग्स व्हाट वी नीड एक्चुअली टू डू इन फ्यूचर. है ना. आवर कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी प्री डिफाइंड. अगर आपको सिलेबस ना दिया जाए, आपको बुक्स ना दी जाए और आपको डायरेक्टली बोला जाए एग्जाम लिखो, तो विल यू बी एबल टू डू दैट? No, No ma'am. ma'am. नो. फॉर दैट प्रॉपर प्लानिंग शुड बी देयर. प्रॉपर क्लासेस आपकी कब कौन सी क्लास लगेगी उसके रिगार्डिंग प्लान करना पड़ेगा. विच टीचर विल टेक विच सब्जेक्ट, दैट ऑल्सो वी नीड टू प्लान.
है ना, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है ना। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जामिनेशन, दैट आल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। ऐसा तो नहीं है ना एग्जाम के लिए बिठा दिया उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हैं आपका क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपके पास आ रहा है। नो, फॉर दैट वी हैव टू think or plan or execute beforehand only. Yes, ma'am. देन क्रिएट भी करना है। अभी हमने प्लान तो कर लिया, हम तो कौन सा सब्जेक्ट बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाना है, किस लेवल का होना चाहिए, उसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होनी चाहिए, है ना, के लेवल क्या है उसका। देन क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब हमने प्लान तो कर लिया कि ये टीचर ये पढ़ाएगी, ये वाला ये करेगा, इस टाइम पे इस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, इस रूम नंबर में लगेगी। अब एग्जीक्यूशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, अब एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा क्लास लेने के लिए। एंड समहाउ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, या वेदर कंडीशंस आर नॉट सो गुड, या फिर फैकल्टी की साइड से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीजें भी मैनेज करनी पड़ेंगी, है ना। उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स के साथ या कॉलेजेस के साथ हमें इवेल्युएशन भी करना पड़ेगा, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स देन एजेंट शुड नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। अब हमें यही सारी चीजें फंक्शंस में पढ़ेंगी कि एक्चुअली एजेंट को क्या क्या काम करना होता है, उसके फंक्शंस क्या है, व्हाट ही एक्चुअली नीड्स टू डू, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है, मार्केट रिसर्च। सेम विद द मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में भी यही पढ़ते हैं कि मार्केटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें फर्स्ट चीज जो करनी होती है वो होती है मार्केट की रिसर्च। We need to identify what actually our customer requires, what is the need of the customer, what are the desire of the customer, what they actually want, है ना। उसके बाद ही हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना अपने आप से जो मन किया वो प्रोडक्ट बना लिया एंड यू आर पुशिंग टू द टारगेट ऑडियंस। We don't care about what they actually want, we just created by our choice, और उसके बाद हम उन्हें बोल रहे हैं कि नहीं आपको तो ये लेना पड़ेगा, चाहे आपको चाहिए या चाहे ना चाहिए। इज इट मार्केटिंग? No, ma'am. What it is? Planning, then creating it. नहीं, द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिव यू, तो ये मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट ये कौन से उसका पार्ट है, कौन सा प्रोसेस है। Where we are only concerned about the product and we are not concerned about the customer. Um, बोलो जल्दी से। एक मार्केटिंग होती है और दूसरा क्या होता है? Selling, Obviously selling. Marketing is customer centric, selling is product centric. product centric. So when we don't care about what customer needs, we are just pushing our product to them. So what it is? It is selling. भूल क्यों जाते हो, क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो? चलो नेक्स्ट। सो यू गाइस आर अवेयर अबाउट द मार्केट रिसर्च, है ना, कि एक्चुअली हमारे टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सा सोशल, अगर इन केस हम उनके एडवर्टाइजिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर यूजेस विच मीडिया चैनल, है ना, उनको किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड रिगार्डिंग द ब्रांड। अब हो सकता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस जेनजीज हो, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, हम प्रिंट मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो विल इट बी इफेक्टिव? No, ma'am. No, right? Because we are aware about the thing that Gen Zs are more on their mobile phones rather than the books, है ना। अगर मैं अभी तुम्हें पीपीटी भी देती हूँ तो पीपीटी भी आप मोबाइल में या लैपटॉप में ही पढ़ते हो, है ना। बुक्स आपके पास है, एसएलएम्स है आपके पास, बट यू हार्डली चूज देम।
right? So for that, Yes, we need to first understand who are our target audience and what they actually do, what they actually want, what are their desires, what are their needs, and on which platform they are more active, because advertisement का effectiveness हम तभी जज कर पाएंगे, तभी evaluate भी कर पाएंगे जब हमारे target audience तक हमारी advertisement पहुंचेगी, उसकी frequency भी हम तभी match कर पाएंगे, है ना? फ्रीक्वेंसी भी तभी कैलकुलेट कर पाओगे। अब ऐसा तो नहीं ना आपने बनाया है प्रोडक्ट जेंजिस के लिए, बट यू आर चेकिंग द फ्रीक्वेंसी और द रीच ऑफ द किड्स या फिर ओल्ड एज पीपल, वो मॉनिटर जो आप कर रहे हो वो भी गलत हो गया, है ना? तो मार्केट रिसर्च का मतलब भी ये होता है, आपको अपने सिर्फ टारगेट ऑडियंस के बारे में स्टडी करना होता है, और यू नीड टू मेक अदर थिंग्स कांस्टेंट, है ना? जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, जब आप टीयूएमयू की बात करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी की, या एवरेज मार्जिनल या टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है? तो जब उनमें चीजें देखते हो, तो अगर आप कोई इक्विलिब्रियम की भी बात करते हो, है ना, लॉ ऑफ डिमांड या फिर आप डिमांड सप्लाई वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सो हम हमेशा वो चीज अजम्पशंस लेके चलते हैं ना कि लेट्स अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और अदर वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, yes, है ना? ma'am. So while you are doing the market research also, so you only think about your target audience, rest you don't care about, ठीक है? फॉर लेट्स से अगर आपने एक ही सेगमेंट के लिए अगर आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, तो आप उसी सेगमेंट को टारगेट करते हो, उसी सेगमेंट को स्टडी करोगे, और उसके अलावा आप बाकी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो एजेंट का भी यही काम होता है, एजेंट बेसिकली नीड टू सेल द प्रोडक्ट, है ना? उसको एक मार्केट प्लेस पे सेलर और बायर को मीट कराना होता है ना? अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो एजेंट का काम ही होता है, मिडल मैन की तरह वो एक्ट करता है, एंड फॉर दैट उसको डील ही क्रैक करानी होती है। अब डील क्रैक कराने के लिए वो क्या करेगा, वो दोनों के बारे में स्टडी करेगा, उसको कैसा बायर चाहिए और उसको कैसा सेलर चाहिए, और उस चीज के लिए उसको मार्केट रिसर्च करनी मस्ट है, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं करेगा तो उसको चीजें पता नहीं लगेंगी, और देयर मे बी चांसेस कि सम थिंग्स रिमेन हिडन फ्रॉम इट, है ना? Then second one is advertising planning. अब advertising planning क्या होता है? Ma'am, it is the primary role of agency to see Okay. to plan advertisement for the firm, and uh, they will plan they will conduct a research about the consumer behavior, and uh, they will see some creative they will create some creative ad, and also will choose the channels where to publish the advertisement. Yes. So अगर हम प्लानिंग का पार्ट कर देखते हैं ना, प्लान में हम ये सारी चीजें देखते हैं कि हमारी टोन क्या होगी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट, वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग डिफरेंट अपील्स, है ना? हम Yes, अपनी ma'am. एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे अपीलिंग बना सकते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, है ना? एंड व्हाट शुड बी द बजट फॉर इट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज वी गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स वी नीड टू मेक, है ना? हमें ये भी देखना है कि हमें शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज हमें कैसे बनानी है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। अब हो सकता है बाद में इस टाइम पे सिनेरियो कुछ और हो, लेकिन जब तक हम एडवर्टीजमेंट लॉन्च करें तब तक सिनेरियो कुछ और हो जाए, है ना? फ्लड की सिचुएशन हो Market जाए, conditions, मार्केट कंडीशंस फ्लक्चुएट करने लग जाए, competition करेंसी in the फ्लक्चुएट, industries. यस, कंपटीशन कम या ज्यादा हो जाए। सो आपको उन चीजों के लिए भी रेडी रहना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग वो सिनेरियोज के लिए भी आप यू नीड योरसेल्फ टू बी प्रिपेयर्ड, है ना? ऑलवेज इट्स अ थिंग कि आपको हमेशा रिस्क के लिए रेडी रहना चाहिए। इट्स नॉट कि आपके साथ हमेशा चीजें अच्छी अच्छी होंगी, अच्छी चीजें होती है तो वेल एंड गुड, बट यू ऑलवेज नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट थिंग इन द फ्यूचर दैट कैन अकर, और जिसकी वजह से अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो फ्यूचर में अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ भी जाती है तो यू नो बिफोर हैंड कि हाउ यू नीड टू हैंडल दैट, है ना? एंड यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट।
ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस, चीजें दोबारा से शायद शुरू करनी पड़ जाए या कुछ चेंजेस करने पड़ जाए, बट इजिली यू विल बी एबल टू डू दैट बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, योर माइंड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अगर कोई अचानक से चीज होती है तो आपको प्रॉब्लम होती है एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्टेंस तो अगर आप प्लानिंग के टाइम पे ही चीजें लेके चलते हो तो एक्सेप्टेंस तो आपको ऑलरेडी है। Okay, so while you're making a advertising planning, so you need to take care about what should be the objective of our advertising, what should be the strategies we need to plan, then what should be the message content for it, हम थीम क्या लेने वाले हैं, हम अपील क्या करेंगे, हम कौन सी अपील हम लेंगे, हमारी टोन क्या होगी, है ना, क्रिएटिविटी किस लेवल की होगी, हमारा कैंपेन का बजट क्या होगा, कौन से सेगमेंट को हम टारगेट करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू केयर अबाउट व्हाइल यू डू द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द पॉइंट इज क्रिएटिव डेवलपमेंट। Yes, ma'am. नाउ व्हाट इट इज, अब हमने प्लान तो कर लिया है ना, अब इफ यू गाइस हैव गॉन थ्रू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, है ना, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस में मल्टीपल चीज होते हैं, प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग भी होती है, कॉन्सेप्ट भी होता है, आपकी प्लानिंग भी होती है, तो एक मल्टीपल स्टेजेस होती है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो अगर जब हमने प्लान कर लिया अब हमें उसको क्रिएट भी करना पड़ेगा, है ना, ऑन पेपर लेकर आनी पड़ेगी हमें चीजें, Yes, राइट। तो ma'am. अब हम क्या चीजें ध्यान रखेंगे इसमें व्हाइल यू आर क्रिएटिंग इट? Advertising message, theme, visuals should be attractive, storytelling. व्हाट एल्स? हमारे स्लोगन्स क्या होंगे, Engaging. हमारी स्टोरी लाइन क्या होगी, हमारे हम कौन से विजुअल्स का यूज करेंगे, हमारा लेआउट क्या होगा, है ना, हम कौन सा मटेरियल का यूज करेंगे, टैगलाइन क्या होगी, सॉन्ग किस चीज का यूज करेंगे। When you need to create an advertisement, तो multiple things you need to keep in your mind while making it, है ना। Yes, When ma'am. Yes, ma'am. we are creating for the Indian society, अब इंडियन सोसाइटी में तो हमें स्टोरी टेलिंग तो डालनी ही पड़ेगी, मस्ट है, कुछ अपील्स भी डालनी पड़ेंगी बिकॉज इमोशनल चीजों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, है ना। Yes, ma'am. Yes. सो फॉर दैट वी नीड टू थिंक अकॉर्डिंगली, वैसे ही लोग हमें हायर करने पड़ेंगे। देन उसमें हमें विजुअल्स कैसे डालने हैं, है ना, ऑडियोज कैसी डालनी है, किसके थ्रू हम यू अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम टीवी का यूज करेंगे, रेडियो का यूज करेंगे, डिजिटल लेंगे, सोशल लेंगे, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट मीडियाज वी आर गोइंग टू यूज फॉर इट। फिर अब क्रिएटिविटी को हमें अलाइन भी करना है अपनी ब्रांड की पर्सनालिटी के साथ। अब ऐसा तो नहीं है ना अब जो मन में आया हमने वो क्रिएटिव बना दिया। हो सकता है कि अगर आप सोलली अगर कस्टमर्स के अकॉर्डिंग क्रिएटिव बनाओगे सो मे बी इट टर्न आउट टू बी वेग, या बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट भी हो सकता है ना, या बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द थीम भी जा सकता है। Yes, ma'am. So for that you need to align it with your brand personality, your brand image। अब एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कर रहे हो ना अपने कस्टमर्स के माइंड में, या डूइंग योर ब्रांड पोजीशनिंग। अब हाउ यू Ma'am. वांट टू डू, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है ब्रांड के लिए या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन योर द एडवर्टीजमेंट दैट यू आर मेकिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फॉर दैट आपको अब क्रिएटिविटी भी लेकर आनी है, अटेंशन भी ग्रैब करनी है ऑडियंस की, प्लस अपनी ब्रांड के बारे में भी सोचना है कि हमारी ब्रांड की इमेज भी डिप्लीट ना हो, है ना, और हमारे कस्टमर तक भी जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं व्हाट द ऑब्जेक्टिव दैट वी नीड टू फुलफिल वो भी हो जाए।
Now the next part is, anybody has any doubt till now? No, ma'am. No, ma'am. So the next is media planning and buying. अब जब हमने क्रिएटिव यूज किया, क्रिएटिव डेवलप किया, अब हमने ये तो चेक कर लिया ना कि हमें ऑडियो वीडियोस किसके अकॉर्डिंग चाहिए, कौन से मीडिया के। अब हम फाइनल करेंगे उसको, है ना। अब सुटेबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हम यूज करके फिर हम मिक्स ऑफ मीडिया का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम रीच और फ्रिक्वेंसी के लिए, है ना। और बाइंग में अब ये कर लेंगे, एडिशन थिंग दैट विल डू इज उसके रेट्स पे नेगोशिएट करेंगे, है ना। उसका टाइम लेंगे, उसका स्पेस बाय करेंगे। तो लेट्स से अगर आपकी कोई उस क्लोथिंग ब्रांड है, तो क्लोथिंग के लिए आप तो सोच सकते हो, आपने प्लान कर रखा है मतलब दिवाली वाले टाइम पे लॉन्च करूंगा अपना प्रोडक्ट या अपना ब्रांड या अपनी एडवर्टीजमेंट। सो अगर आपने ये सोचा हुआ है तो आपको दिवाली के ड्यूरिंग वाले डेज पे बुक करना पड़ेगा अपना स्लॉट, है ना। तो बुकिंग ऑफ दैट स्लॉट इज नोन एज द बाइंग ऑफ द स्लॉट और द स्पेस टाइम। ठीक है। अब हो सकता है ना कि इंस्टाग्राम ने आपको बोला कि, या किसी उसने बोला कि अगर मैं आपकी एड रन करूंगा तो आई गोना चार्ज यू दिस अमाउंट फॉर इट। आपको तो बहुत ज्यादा लगा, सो फॉर दैट यू आल्सो नीड टू नेगोशिएट विद देम। ठीक है। सो बेसिकली इन मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग आपको एक मीडिया प्लेटफॉर्म को फिक्स करना होता है जो आपके लिए बहुत सुटेबल हो। प्लस अगर हो सकता है कि आपको मल्टीपल मीडिया चॉइसेस का यूज करना पड़े फॉर द बेटर रीच एंड द फ्रीक्वेंसी। देन regarding to the rates when you're gonna buy it, so for that you need to negotiate for the rates and you need to purchase the space or the time for the campaign you're going to run for the advertisement. Okay. Yes, Yes, ma'am. Now the next one is production of advertisement. अब हमने क्या चीज कर ली थी, प्लान कर लिया, ये मार्केट रिसर्च कर लिया, फिर प्लान कर लिया, फिर क्रिएट भी कर ली चीजें, प्लान भी कर, स्लॉट भी बाय कर लिया। अब जो हमने अप्रूव कराई हैं चीजें, है ना, अब वी नीड टू इंश्योर कि वो क्वालिटी मेंटेन हुई हो, है ना। अब सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, फोटोग्राफर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, डिजाइनर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, जो आपके वीडियोग्राफर्स होंगे उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, प्रिंटिंग हाउस के साथ भी करना है, जिन्होंने आपको मीडिया चैनल्स के साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना है, डिजिटल प्रोड्यूसर्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। आपने तो इस टाइम बस प्लान ही किया था ना, एग्जीक्यूट तो करना बाकी है अभी, है ना। तो एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, where you coordinate with multiple people, those who are directly or indirectly involved in the process, and you need to ensure आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कैंपेन एग्जीक्यूशन। अब हमारी एडवर्टीजमेंट फुल बन गई है, सो इम्प्लीमेंट करना है हमें उस एडवर्टीजमेंट को, डिफरेंट जो हमने सेलेक्ट किए हैं मीडिया चॉइसेस, एंड वी नीड टू इंश्योर हमारा टाइम पे रिलीज हो जाए और जो एडवर्टीजमेंट का मटेरियल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। कैंपेन रन करने का मतलब यही होता है, जो हमने एडवर्टीजमेंट या जो हमने एक्चुअली मीडिया का चूज करा है, जो सेलेक्ट करी है हमने मीडिया, उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग सेम टाइम पे जो हमने बुक करा है उस टाइम पे हमारी एडवर्टीजमेंट रन हो जाए, सबके पास पहुंच जाए, है ना। सो वी नीड टू इंश्योर इट कि रिलीज टाइम पे होगी तभी लोगों के तक पहुंच पाएगी। ठीक है। Yes, ma'am. yes, ma'am. देन पब्लिकेशंस एंड सेल्स प्रमोशन। पीआर क्रिएट करने पड़ेंगे आपको कैंपेन्स के लिए, प्रेस रिलीज करनी पड़ सकती है, इवेंट्स करने पड़ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स देखनी पड़ सकती है ना। सेल्स प्रमोशन टूल्स आपको डिजाइन करने पड़ सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट आर डिफरेंट सेल्स प्रमोशन टूल्स।
Name one of them. सेल्स को प्रमोट करने के कौन कौन से टूल्स है बेटा? Personal selling, public relations, और digital marketing, direct marketing. Okay. बेटा ये तो मार्केटिंग का बता रहे हो, मैं तो सेल्स का पूछ रही हूँ. टूल्स कौन से हैं? हाउ आर यू गोना इंक्रीज द सेल्स ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट? अगर मैं Some आपकी through शॉप पे आ रही Personal हूँ, selling, public relations are the two which I'm right now recalling. if Able you to are the recall. shopkeeper, है ना? If you are the shopkeeper and I'm there to buy something from you. discount, Yes, yes, discounts, coupons, free samples, ma'am. या सेल्स प्रमोशन टूल्स क्या होते हैं? सेल, हम मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स. So we are aware about what is the difference between the sales and the marketing, Yes, ma'am. right? So we are talking about the sales right now. We are not talking about the marketing thing. अगर बाय हुक और बाय क्रूक हमें अपना सामान बेचना है तो कौन से ऐसे टूल्स हम यूज करेंगे? हम क्या करेंगे? हम उनको डिस्काउंट्स दे देंगे, हम उनको कूपन्स प्रोवाइड कर देंगे, कोई कॉन्टेक्स्ट रख देंगे, है ना? ऑफर्स हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे. तो दीज आर द डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स. तो हमें वो भी डिजाइन करने होते हैं while we are making a public relations or when we need to promote our sales. Then comes the evaluation and control. When actually आपके जब एडवर्टीजमेंट रन हो चुकी है, आपका कैंपेन रन हो चुका है, then you स्टडी द अवेयरनेस, है ना? फीडबैक लेते हो, आप सेल्स को एनालिसिस करते हो, डिजिटल मैट्रिक्स को चेक करते हो. फॉर लेट्स से अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे की है, ठीक है, आपने कैंपेन रन किया है ऑन द सोशल मीडिया, तो आप चेक तो करोगे ना आपकी मैट्रिक्स क्या है, कितने लोगों तक पहुंची, इंप्रेशंस, कितने नंबर ऑफ इंप्रेशंस है. प्रोडक्ट अगर आपने भेजा था लोगों को, रिटेलर्स को, तो रिटेलर्स से डेटा तो कलेक्ट करोगे ना कि कितना प्रोडक्ट सेल हुआ. ठीक है? Yes, ma'am. अगर फॉर दैट, बेसिकली इवेल्युएशन का मतलब है यू नीड टू कलेक्ट द डेटा जस्ट टू चेक हाउ इफेक्टिव योर एडवर्टीजमेंट इज. और अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो यू नीड टू देन चेक where we are lacking and how we can improve it for the future programs. ठीक है? कंट्रोलिंग का मतलब Yes. one of the functions of the marketing, sorry, one of the functions of the management, है Yes, ना? जब हम ma'am. पढ़ते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, तो उसमें लास्ट आता है हमारा Staffing on. कंट्रोलिंग. Yes, या ma'am. तो कंट्रोलिंग इज द बैकवर्ड Yes, लुकिंग फंक्शन, है ना? In controlling function we actually check what we actually have planned and what we actually have got. उन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर सेम है रिजल्ट जो हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट है, वेल एंड गुड. नहीं है तो वी नीड टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स. राइट? सो दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग इज. तो इन केस ऑफ द एडवर्टीजमेंट और एजेंसी के केस में हम इवेल्युएट करते हैं कि जितने भी हमने सोशल मीडिया का यूज किया है, जो भी हमने कैंपेन्स रन करे हैं, उन सबका मैट्रिक्स क्या है. And accordingly, if there are some changes, then we're going to suggest some improvements for the future advertising programs that we're going to run. Next one is account management. Account management क्या होता है? बताओ जल्दी से, what is the account management?
measuring results through analytics. Okay. See, don't get confused about with the word account. बस मैनेजमेंट देखो, है ना? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यू नीड टू मैनेज विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ताकि आप स्मूथली काम कर पाओ, है ना? Yes. क्लाइंट की एजेंसी की रिलेशनशिप भी आपको मेंटेन करनी है ना? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना? कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, रिलेशनशिप्स ना ब्रेक हो, है ना? किसी के साथ कोई भी मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, स्मूथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर हम क्रिएटिव भी कर रहे हैं, मीडिया भी हमने चूज किया या कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने देखा है, सो स्मूथ अगर हम कोऑर्डिनेशन रखेंगे अपना, सो ऑटोमेटिकली हम टाइम से पहले भी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। सो अकाउंट मैनेजमेंट इज थिंग कि हमें सिर्फ चीजें ही नहीं ध्यान में रखनी होती है, हमें कोऑर्डिनेशन पे भी ध्यान देना होता है, हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पे भी ध्यान देना होता है, बिकॉज इट ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम रिलेशनशिप ही नहीं मेंटेन करेंगे, हम सिर्फ काम काम देखते रहेंगे, तो मन भी नहीं करता काम करने का, है ना? फॉर लेट्स से अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, बस पढ़ के आ जाओगे, तो कॉलेज के दिन एंजॉय कैसे करोगे? है ना? कॉलेज इज ऑल Yes, अबाउट स्टडी एंजॉइंग एज वेल, है ना? कॉलेज में सिर्फ सोली पढ़ने तो कोई नहीं जाता है, दोस्त बनाने भी जाते हैं, मजे करने भी जाते हैं, है ना? एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करने जाते हैं। फिर अगर कोई सीआर और एआर बन जाता है तो उसको कोऑर्डिनेशन भी देखना होता है टीचर और बच्चे के बीच में, है ना? इफ यू बिकम्स अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सो यू नीड टू मैनेज, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। टीचर बोलेगी उसी को बताएगी और वो टीचर की कही हुई बात बच्चों को बताएगा, फिर बच्चों की साइड से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ही रिएक्ट एज अ मिडल मैन, है ना? सो ही नीड टू मेक श्योर कि कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द अकाउंट मैनेजमेंट इज। ma'am, can we say this performance tracking? ट्रैकिंग तो ये हमारे इवेल्युएशन में आ गया ना, इवेल्युएशन में हम देख रहे थे। In evaluation, we are taking care of the feedback, sales analysis. Ma'am, इसमें भी हाँ? तो we are providing the reports ना and No, the we are not improvements. providing reports in account management. We are maintaining the coordination. Okay. Okay, we are just looking after the relationship. We are not looking after. We are not digging into the data thing. We are not comparing anything. We are just making everything smooth. Okay, ma'am. Okay. Now the last one is digital and social media services. अब मॉडर्न एजेंसीज कुछ होती हैं, अब उसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग भी होती है हमारी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होती है ना? कंटेंट क्रिएशन भी होता है, कुछ ऑनलाइन एनालिटिक्स भी होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल द फंक्शंस आर क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, किसी को कोई ma'am. डाउट? जल्दी से एक बार रीड कर लो and go through all the points and recall what I have said. And when you're done, please let me know.
Are we done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? Or is there any point that you are not able to recall? Everything is clear, ma'am. Okay. So now let's move to the next thing, next topic basically. Now we have covered that what is actually the advertising agency is and what are the different functions for it. Now we're going to select the best fit for us. ठीक है, अब हमें ये तो पता है ना एडवर्टीजमेंट की एजेंसी कौन कौन सी होती है. अब उसमें से ऐसा तो नहीं है ना हर किसी के साथ आप डील कर लोगे. यू नीड टू चूज द बेस्ट वन. और फॉर लेट्स से ऐसा तो नहीं है ना आप सारे ब्रांड के कपड़े पहनते हो या सारे ब्रांड्स के आप शूज वेयर करते हो या सारे ब्रांड्स के आप कॉस्मेटिक यूज करते हो. देयर आर सम पर्टिकुलर ब्रांड्स दैट यू यूज. Yes, अब ma'am. आपने वो ब्रांड Right, कैसे ma'am. चूज करनी है. हाउ यू कम टू नो कि दिस इज द बेस्ट ब्रांड फॉर यू एंड यू शुड वेयर दैट ओनली. Comfort आपने basis, design. उसके अलावा कोई और ब्रांड क्यों चूज नहीं करी. Through comfort, ओके, कंफर्टेबल design. होना, डिजाइनिंग, अवेलेबिलिटी ऑल्सो, है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट भी अफोर्डेबल होनी चाहिए, है ना. सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी ब्रांड होनी चाहिए. अब कई बार ऐसा होता है ना इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ आते हैं कि आप ये बाय कर लो एंड इफ यू क्लिक, अगर Reputed. आप, है ना, अगर आप बाय भी कर लेते हो, आपके पास प्रोडक्ट भी कुछ का कुछ आता है और आपके पैसे भी चले जाते हैं. एंड व्हेन यू कॉल देम ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर या किसी वेबसाइट पे करते हो तो वो सारे बैन ब्लॉक होते हैं, है ना. दे आर नॉट इन यूज, right? So how you need to categorize the brand on the basis of the trust or the credibility, है ना. So हमें while we are choosing something we need to take care about the different factors, है ना. अगर हम मार्केटिंग का डिसीजन लेते हैं तो मार्केटिंग डिसीजन में हम इंटरनल फैक्टर्स प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान में रखते हुए लेते हैं. ठीक है. तो सेम एज हेयर ऑल्सो व्हेन वी आर चूजिंग द राइट एजेंसी फॉर अस, so for that also we need to take care of the different points. So first one is agency size and capabilities. So first thing that you need to keep in your mind is while selecting a right fit for you is what is the actual size of the agency or what are its capabilities, है ना. अब एजेंसी का साइज आप किस बेस पे सिलेक्ट करते हो. ये सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी साइज, आपके इंडस्ट्री का क्या साइज है और आपका बजट क्या है. ठीक है. व्हाट आर द बेसिकली कैपेबिलिटीज फॉर इट. अब इफ आई आस्क यू व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, तो हाउ यू गोना एक्सप्लेन मी दिस. बोलो. Speak up, what happened? मैम खुद की तारीफ कैसे करें. ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं. मैंने तो पूछा ही है ना. नहीं पूछा होता फिर करते तो फिर दिक्कत होती है. जब पूछ लिया जाता है तब तो बताना होता है. तो बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज. अगर मैं बोलूं आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क और नॉट, तो आप कौन सी ऐसी चीजें हैं आप जिन पे अपने आप को जज करोगे.
Sorry, ma'am, could you repeat? I'm asking if I ask you, are you capable of doing something? या मैंने कोई भी काम आपको अलॉट किया है ना, तो मैं क्या चीजें देख के आपको काम अलॉट करूंगी? तो लेट्स से अगर मुझे मैथ्स का कुछ काम कराना है ना, स्टैट्स का कुछ काम कराना है, न्यूमेरिकल डेटा है ना, सो मैं किस बच्चे को चूज करूंगी फॉर दैट? To those who are good in maths. Those who are Calculation would. अब तो सबने बोलना चालू कर दिया, तब से मौन व्रत रख रखा था। हाँ I mean, then like we can say those people or persons who are effectively do the certain things. यस, ठीक है। So basically, while you are checking the capabilities of the some agencies, आपको ये देखना पड़ेगा कि actually, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। You are a very big brand, ठीक है। Okay. तो क्या आप आपको आपको कैंपेन, एडवर्टीजमेंट कैंपेन छोटा होगा या बड़ा होगा? यू विल बी बड़ा होगा। टारगेटिंग I'm Huge both. mass audience. population, mass population या only some segmentations you need to target? Mass audience. I'm है ना, mass mass audience। population. अब आप कौन सी ऐसी एजेंसी को चूज करोगे कि उसकी अवेयरनेस या उसके एरियाज ऑफ डूइंग वर्क मल्टीपल सिटीज पे होने चाहिए, या वो एक टाइम पे उसकी रीच बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना, जस्ट लाइक द Yes, ma'am. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं कि प्लीज हमारे लिए एडवर्टीजमेंट कर दो, अपना पोस्ट कर दो अपनी प्रोफाइल पे, है ना। हम उसी चीज के लिए उसको पे कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर वो एक टाइम पे अपना एक पोस्ट डालेगा तो मल्टीपल पीपल विल गोइंग टू वॉच इट, राइट। तो उसकी कैपेबिलिटी है ये। अगर हमें हमें चाहिए कि हमारी 7 to 8 मिलियन लोगों के पास एक ही टाइम पे चली जाए, तो जिसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे हम उसी को चूज करेंगे ना। क्या हम जिसके थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं हम उसको अप्रोच करेंगे? No, ma'am. No. No, ma'am. Same as with the advertising agencies also. So first we need to select the size of the company, and accordingly we're going to choose कि उस एजेंसी का साइज क्या है, क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर मैं उसे ऑल ओवर इंडिया कवर कराना चाहूँ थ्रू एडवर्टीजमेंट तो क्या वो कर पाएगा, क्या उसके इतने लिंक्स हैं, क्या वो इतना बजट है उसका, ठीक है। So first Yes, we're ma'am. going to check the agency size and the capabilities. Now the second thing, उसका experience कितना है, expertise है भी या नहीं है ना। उसे सेम ब्रांड्स के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट करी है या नहीं करी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसने सक्सेसफुल कैंपेन्स रन किए हैं या नहीं किए हैं। अगर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, आप रिव्यूज देख के ही तो चेक करोगे ना। अब रिव्यूज में अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो रेस्टोरेंट जाने से पहले या कोई भी ऑनलाइन परचेज से पहले आप रिव्यूज चेक करते हो फॉर Yes, दैट ma'am. पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब रिव्यूज में हमेशा किसी ने नेगेटिव नेगेटिव लिखा हो तो विल यू गोइंग टू बाय इट? No, ma'am. no, ma'am. नो। यू ऑब्वियसली गो for the brands or for the platforms those who have a number of positive reviews, ठीक है। सो आप वही एजेंसी चूज करते हो जिसकी एक्सपर्टीज हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। हम हमेशा कहते हैं ना कि इफ यू नीड टू हायर समबडी तो यू नीड टू हायर पर्सन विद द एक्सपीरियंस। व्हाई? हम या कोई भी ब्रांड या कोई भी इंडस्ट्री मेंबर या कोई भी कंपनी फ्रेशर को ऑप्ट करना क्यों पसंद नहीं करती है? Why it is difficult in the market to get a job for a fresher, but easily Ma'am, experienced because people can? company can't risk their resources Yes, on the fresher. yes। अब उनको तो उन्हें सारी चीजें सिखानी पड़ेगी ना, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे जिसमें उनका बजट भी लगेगा, है ना, फाइनेंस भी यूज होगा। अब एक्सपीरियंस बंदा है उसको तो कुछ ही सिखाने की जरूरत नहीं है, Yes, ma'am. राइट। उल्टा वही हमें Yes. सजेस्ट करेगा, यू डू लाइक दिस, डू लाइक दैट, दिस इज हाउ वील गोना डू इन अ प्रॉपर मैनर, दिस इज हाउ वी कैन बी इन अ प्रॉफिट, ठीक है। सो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और एक्सपर्टीज उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उसे आता ही नहीं है और हमने उसको अपना इतना बड़ा काम दे दिया कि भैया हमारी एडवर्टीजमेंट रन कर दे।
ठीक है। अब उसका क्रिएटिव भी होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर, इनोवेशन होनी चाहिए। अब ऐसे ही जो पढ़ाकू इंसान होगा, हम क्या उसको ये बोलेंगे कि आप ड्राइंग बना के दे दो या पेंटिंग कर दो? No, ma'am. नो, those who are into sports will only be asked to run or to take part in the sports game, है ना, या some sports tournaments, है ना। अब जो कभी भागा ही नहीं है, हम उसको रनिंग के लिए कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते हैं। और कोई हमेशा अगर स्पोर्ट्स में रहा है, हम उसको ओलंपियाड्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बिठा सकते हैं, कैसे उसको नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर दोज थिंग्स? विल नॉट गोइंग टू डू दैट। सो वी नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू द वर्क। एडवर्टीजमेंट में हमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, इनोवेशन की जरूरत होती है ना। कोई चीज फ्रेश होनी चाहिए, कोई सेम चीज चलती नहीं आनी होनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, डिफरेंट अपील्स होनी चाहिए, एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट एजेंसी जिसके पास ये क्रिएटिविटी का टैलेंट होगा। इन मीडिया Yes, स्ट्रेंथ, ma'am. हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर इन द मीडिया थिंग, है ना। उनकी मीडिया बाइंग पावर कितनी अच्छी है, कितने बेटर रेट्स पे वो नेगोशिएट कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया को साथ में यूज करने की, है ना। हाउ दे गोना सेलेक्ट द मीडिया, क्या उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो राइट काम के लिए राइट मीडिया चूज कर पाए? क्या उनके अंदर इतनी सेंस है कि वो मल्टीपल मीडिया का यूज करके हमारी रीच और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सके? देन इंटीग्रेटेड सर्विसेज। अब इंटीग्रेटेड सर्विसेज का मतलब क्या है? जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं उनको रिड्यूस करना, स्मूथ मैनेज करना, है ना, चीजों को स्मूथ फ्लो मेंटेन रखना। और हम वही वाली एजेंसी चूज करेंगे जो हमें एंड टू एंड सर्विसेज देगी। अब ऐसा तो नहीं है ना, हमने एक सर्विस एक एजेंसी वो चूज कर ली जो सिर्फ क्रिएटिव बना के हमें दे सकती है, फिर हमें दूसरी एजेंसी वो चाहिए जो मीडियाज पे रन करेगी हमारा कैंपेन, थर्ड वो चाहिए जो हमारी सारी दूसरी बजट में होगी। सो वी नीड टू सेलेक्ट मल्टीपल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्क, और वी नीड टू सेलेक्ट ओनली वन जो मल्टी टैलेंटेड हो, वो हमारा एक ही एजेंसी हम ले और वही हमारा सारा काम कर दे। Yes, ma'am. The second one. Second one, right? So these, the one who have the integrated services, we're going to opt for it only. वो एंड टू एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगे, वो हमें क्रिएटिव भी बना के देंगे, वो मीडिया का भी चूज करेंगे और डिजिटल मीडिया पे भी चेक करते रहेंगे, वो प्रोडक्शन भी कर लेंगे, वो हमारा पीआर भी कर लेंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है फ्यूचर में वो भी हैंडल कर लेंगे, स्मूथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे। देन द कॉस्ट एंड द बजट कॉम्पेटिबिलिटी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका बजट कुछ और है और मीडिया वो एजेंसी जो है वो कुछ और ही डिमांड कर रही है। इट शुड अलाइन, क्लाइंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी और एजेंसी की रिक्वायरमेंट शुड अलाइन, शुड सिंक, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू समथिंग फ्रूटफुल। ठीक है। ट्रांसपेरेंट बिलिंग प्रैक्टिसेस होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, कोई भी हिडन एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए। और जितने भी आपकी कमीशन की चीजें हैं या आपने जो भी अग्रीमेंट साइन किया है उसमें प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए व्हाट विल बी द प्रॉफिट मार्जिन रेट्स क्या होंगे, कितना चार्ज करोगे, कितने पर इम्प्रेशन कितना चार्ज होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितना अमाउंट यू गोना चार्ज। तो एवरीथिंग शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर प्लस ट्रांसपेरेंट। क्रिस्टल क्लियर भी होनी चाहिए चीजें, कंसाइज वे में भी होनी चाहिए। इट्स नॉट कि बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट वे में आप शोकेस करो कि लोग समझ ही ना पाए। तो ट्रांसपेरेंसी यू नीड टू मेंटेन बिटवीन द क्लाइंट एंड बिटवीन द एजेंसी। कि बजट के हमेशा किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो वो बजट के रिगार्डिंग होती है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट्स बेटर टू रिड्यूस दैट थिंग। तो पहले आपको अपनी पता होना चाहिए व्हाट इज योर
बेसिकली स्टैंडर्ड, या किस बेस पे आप अग्री कर सकते हो, आपका बजट क्या है, और फिर सामने वाले की चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि उसकी क्या चीजें, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑन व्हाट अमाउंट ही विल बी एबल टू डू दैट। नेगोशिएशन भी आपको करना चाहिए, बट फिक्सिंग भी होनी चाहिए। वैसा नहीं है कि आपने रिक्वायरमेंट आपकी कुछ और है और उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपने एग्जैक्ट चीजें उनको बताई नहीं एंड यू वेंट इनटू अ डील, बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, राइट? सो दैट केस शुड नॉट अराइज एंड देयर शुड बी अ proper transparency while you do some billing practices. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And client servicing quality. एफिशिएंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, है ना? क्लाइंट सर्विसेज क्वालिटी का मतलब एजेंसी को ही तो अब आगे फॉरवर्ड करनी है ना चीजें विद द टारगेट ऑडियंस, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, या वी आर आउट फ्रॉम द पिक्चर, ओनली द एजेंसी एंड द क्लाइंट इज देयर। अब एजेंसी डील करेगी हमारी क्लाइंट के साथ, तो क्वालिटी मेंटेन तो उसको करनी चाहिए, बिजनेस की नीड्स भी उसको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिव भी होना पड़ेगा, कम्युनिकेट भी अच्छे से करना पड़ेगा, डेडिकेटेडली चीजें, कुछ चीजों को मैनेज भी करना पड़ेगा, एक अकाउंट मैनेजर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, सो दैट सर्विसेज एक्यूरेट हो, फुल ऑफ क्वालिटी हो, कहीं पे भी लैक ना कर रहे हो आप लोग, जब ब्रांड कहीं लैक ना करे, because while we're doing advertisement we are making long term relationship with the clients or with the audience, or we are positioning our brand, और पोजीशनिंग अच्छी करने के लिए हमें सारी चीजें अच्छी अप टू डेट प्रोवाइड करनी चाहिए उनको। इन रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी, अब वी नीड टू चेक, अब जिस एजेंसी को हम हायर कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए, उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट किया हो, आपके भी पैसे डूब जाए, आपको ये चेक करना चाहिए, ये चेक करना होता है पहले कि इज इट ट्रस्ट वर्दी और नॉट। अब ऐसा तो नहीं है ना, जब आप शेयर्स वो लेट्स से अपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, है ना, ट्रेडिंग करते हो, तो कौन सी कंपनीज पे करते हो जिसके बारे में आपने ज्यादा सुना होता है, जिसको आपको पता है कि वो तो कभी भी फ्रॉड नहीं करेगी और कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, है ना? आप रिसर्च करते हो पहले, first you check the reputation or the image of that particular brand, then only you get to know, or you need or you do evaluation, then after you choose in which company or which brand you need to invest in. better ROI. या जिसका बेटर आ रहा है वो आपको चेक करना है ना? जिसकी स्टेबिलिटी हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हो, है ना, क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, एथिकल प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, ट्रस्ट वर्दी हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कोई ना करता हो। Flexible enough Yes, to flexible. Yes, absolutely. Then technological capabilities, और आजकल तो डेटा ड्रिवन मार्केट हो चुकी है ना, एआई ड्रिवन हो चुकी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, so we going to choose that particular agency only those who are up to date with the टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ खुद को भी चेंज कर रहे हैं, नॉट लाइक द नोकिया, वो अपनी चीज पे स्टिक रहे थे इसलिए अब वो मार्केट में है ही नहीं, yes he ma'am. has been thrown out, right? So for that we need to check the agency we are opting for our advertisement should be full of technology और उसने आज के recent trends को follow कर रखा हो। Then the cultural fit, it should fit our culture, our values, क्योंकि जिसके साथ आपका स्टाइल मैच कर गया, जिसके साथ आपकी वैल्यूज मैच कर गई, जिसके साथ आपको लग गया कि यस यू कैन डू वर्क विद, आपको पार्टनर्स बनाने के लिए यही चाहिए ना, जिसके साथ आपकी थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, क्रिएट हो जाए, है ना? Yes ma'am. अगर मैं आपको बोलूं यू नीड टू क्रिएट अ टीम, तो टीम आप किन लोगों के साथ बनाओगे, जिनके साथ आपकी बनती होगी। अब ऐसे Yes तो नहीं ma'am. जिन लोगों के साथ आपकी लड़ाई होती है उनको बोलोगे आ जाओ भाई टीम क्रिएट करते हैं, नो यू आर नॉट गोइंग टू मेक ग्रुप विद देम। So while we are choosing the advertisement agency, we need to check our culture also. So in case of culture, that we are thinking or talking about the values or the working style or the strategic vision, so that we can have a long-term partnership with them and we should have a smooth collaboration in future also.
Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है बच्चे किसी को? No, ma'am. फटाफट से सारे एक बार रीड कर लो, then we're going to start the next topic. Done, ma'am. Done? Is there any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we're good to go. So we have done with our advertising agency and its functions, then choosing the right agency. Now we're going to talk about the what is agency compensation. So we left with only two topics now. Now agency compensation. Compensation क्या होता है बेटा? Reward in exchange Yes. of the services. Basic pay, incentive, bonus are some examples of compensation. Yes. Also, financial and non-financial, there are two types of compensation. In non-financial, there is motivation, a reward, benefits, perks, recognition programs, job security. Okay. So basically, compensation refers to the thing जिसके through हम उनको pay करते हैं for the services we are getting from them. है ना? If we are working somewhere, so they are paying us. है ना? And why they are paying us? Because we are providing them the work they require from us. Yes, ma'am. Right? अगर हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं तो हमें सैलरी क्यों देते हैं? वो हमें compensation क्यों देते हैं? In exchange of the work. For the क्योंकि वो work हम we have काम done. करा रहे हैं, है ना? अगर हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर समथिंग इन रिटर्न. सो वो जो हम रिटर्न में चाह रहे होते हैं वो ही हमारा कॉम्पनसेशन होता है बिकॉज वी आर गिविंग देम द सर्विसेज. ओके. Yes, ma'am. कॉम्पनसेशन इज ऐसे कौन से मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को पे करेंगे जिनके लिए वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं. द सर्विसेज दे आर गिविंग टू अस वी नीड टू पे देम फॉर इट. उसको हम बोल देते हैं एजेंसी कॉम्पनसेशन. अब उसमें रेम्यूनरेशन हो सकता है रिगार्डिंग अब जितना भी उन्होंने काम किया, उन्होंने प्लान किया है, उन्होंने क्रिएट किया है, उन्होंने मीडिया को मैनेज किया है, प्रोडक्शन किया है, कंसल्ट किया है, उन्होंने पीआर लगाया है, उन्होंने डिफरेंट सोशल मीडियाज को सिंक करके एक मीडिया मिक्स बनाया है. सो फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट दे हैव डन वी नीड टू पे देम फॉर इट. तो वो उस अमाउंट को हम बोल देते हैं एजेंसी कॉम्पनसेशन. Okay, so there are some traditional methods plus some modern methods. अब ट्रेडिशनल मेथड में आता है बेटा हमारा कमीशन सिस्टम. ठीक है, अब कमीशन सिस्टम तो ये सबको पता है.
है ना, सबसे पुराना है। अब हम उसको बोलते हैं अगर तू हमारा इतना सामान Yes, बेच ma'am. देगा तो हम तेरे को इतना परसेंट ऑफ अपना प्रॉफिट दे देंगे, या इतना परसेंट ऑफ कॉस्ट वी गोइंग टू पे यू। लेट्स से अगर मेरा 1000 रुपए का है, ठीक है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है। अब 1000 रुपए के प्रोडक्ट को मैं तो हर किसी को नहीं अप्रोच कर सकती, मैं तो एक ही जगह पे प्रेजेंट हूँ ना। सो फॉर दैट आई वांट टू हायर समबडी हु कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट सिटीज एंड कैन सेल माय प्रोडक्ट। अब मैं उन लोगों को, अब वो मुझे ये बोलेंगे कि मैं आपके लिए काम क्यों करूं, मुझे क्या मिल रहा है, मैं अपना टाइम भी लगाऊं, लोगों को कन्विंस भी करूं, लोगों के साथ नेगोशिएट भी करूं, आपका सेल भी करा दूं, आपको तो प्रॉफिट मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। सो इन रिटर्न आई एम गोइंग टू से इट कि आपको कमीशन मिलेगा, कि जितना भी अमाउंट होगा उसमें से अगर आपने 1000 उसका प्राइस है, 1000 से अगर ऊपर आपने बेच दिया, उतने अमाउंट पे अगर आपने बेच दिया, तो उसमें से आपको 10%, 5%, 1% आपको एज अ कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। मैम बट ये एजेंसी मेकिंग में पैसे नहीं चार्ज करेगी अपनी फीस क्या और बोलते हैं, सर्विस। सॉरी। Commission, they'll ask for the commission once the advertisement making and everything is done, or they will not charge anything before that while they are working on it. क्या आप वन टाइम ही पे करते हो ना, इफ यू आर डूइंग जॉब तो आपको मंथ में एक ही बार पेमेंट मिलती है या सैलरी प्रोवाइड की जाती है, बट आपसे काम वो हर नहीं रोज मतलब करा रहे हैं। मैम लेकिन It वो is a तो अलग चीज traditional होगी। way. अच्छा It is a traditional way that we are studying right now. कि पहले कैसा होता था, जैसे पहले आपकी प्रिंट मीडिया होती थी, आपका तब सोशल मीडिया नहीं चल रहा था, आप डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स पे चीजें नहीं करते थे, है ना, दैट आर कमिंग अंडर द मॉडर्न थिंग, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंडर आई है आपकी वो। ट्रेडिशनल वे में तो आप लेटर फॉर्म में ही कन्वे करते थे ना मैसेजेस, लेकिन अब आप मेल कर देते हो। ओके ठीक है। मैम। यस मैम। तो in this kind of thing, in the point of compensation, we are studying right now the traditional methods. Sorry. Now the Harshali, you can read second, the third point in it. Ma'am, she is saying that apart from the commission, we don't pay, agencies don't get paid or what? Mhm. And she's asking this. See, अब एक चीज बताना मुझे, अगर आप लोगों ने कभी प्रॉपर्टी में डील किया होगा, है ना, तो Yes, प्रॉपर्टी ma'am. वाले लोग ना हमेशा कमीशन पे ही काम करते हैं, वो सैलरी नहीं लेते, क्योंकि सैलरी हमेशा ब्रोकर। कम होती है, कमीशन। या ब्रोकर्स मैम जो जो होते वो हैं, आपके मीडिएटर प्रॉपर्टी होते हैं डीलर्स वो तो होते हैं, हाँ। जो आपके प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, है ना, वो हमेशा करते हैं। हम्म। अगर आपने उनको 1 करोड़ की जमीन अगर बिकवाई है, तो उसमें से उनका 1% होता है, तो उनको तो अगर 1 करोड़ की चीज उन्होंने कराई है, तो उनको 1 लाख रुपए तो मिल गया एक ही बारी में। तो क्या वो ये चीज सोचेंगे कि हमने तो प्लान भी किया, हमने तो आपके लिए बायर भी लेकर आए, उनकी मीटिंग भी कराई, हमने डॉक्यूमेंटेशन भी कराया, तो उस चीज का तो उनको कमीशन में से 1 लाख रुपए मिल गया ना। कमीशन के अलावा भी हम उनको उनके काम का क्यों देंगे फिर। गॉट इट। ठीक है, जो उन्होंने काम किया है वो तो हमने यस मैम। कमीशन की फॉर्म में उन्हें पे कर दिया। मतलब दे आर डूइंग देयर वर्क फर्स्ट और फिर वो कमीशन के थ्रू अपनी पेमेंट लेंगे। गॉट इट। यस, यस। द सेकंड वन इज मार्कअप और कॉस्ट प्लस मेथड। अब कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है? वी कैन स्ट्रेट अवे से कि ये प्रॉफिट मार्जिन होता है हमारा, जितना हमारी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट के ऊपर जितना भी हम मार्जिन फिक्स करेंगे फॉर आर प्रॉफिट, वो हमारा मार्कअप या कॉस्ट प्लस मेथड होता है। मतलब दे विल से कि हमारा ये एडवर्टाइजमेंट बनाने में इतना खर्चा आया है एंड दिस इज आवर चार्जेस प्लस, मतलब इंक्लूड दे व्हाटएवर, मतलब देयर हम्म सर्विस की ये हमारी सर्विस चार्ज ये है एंड दिस इज now व्हाट द एक्चुअल। understand yeah, now understand like this. If you are making something, ठीक है, अब अगर फॉर लेट्स अगर आपने पेन ही बनाया, तो पेन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी?
सिर्फ प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आएगी उसकी? मल्टीपल फैक्टर्स लोगे, है ना, प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल कितना लगा, लेबर का कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, ये सारी चीजें कितनी लगी। तो क्या आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोडक्शन प्राइस पे लाइक सेल कर दोगे, या उस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लगाओगे? आपकी मेहनत भी तो लगी है उसको बनाने में, राइट? यस मैम। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपए आई है, तो आप उसमें 5 रुपए अपने भी तो ऐड ऑन करके, अपना प्रॉफिट का ऐड ऑन करके ही तो उसकी 10 रुपीज प्राइस फिक्स करोगे ना, या आप उसको 5 रुपीज पे ही सेल आउट कर दोगे? No, ma'am, will include more charges basis on the service. तो जो आप मोर चार्जेस ऐड ऑन कर रहे हो ना बेटा, जो आप प्रॉफिट के फॉर्म पे लेना चाहते हो, और यू आर एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको ही आप बोल देते हो मार्कअप और कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है? Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड फी। अब फिक्स्ड फी तो ये सबको ही पता है ना? अब हम फिक्स कर देते हैं कि आपको हम मंथली इतना देंगे या एनुअली इतना देंगे। लेट्स से अगर आपको किसी से काम कराना है ना, आप अपनी कंपनी में लोगों को, एम्प्लॉयज को हायर करते हो, अब उनको मंथली पे करते हो ना। अब बेशक अगर वो किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी में है, ठीक है, तो इवेंट जब भी हुआ तो हमेशा आप इवेंट पे थोड़ा ना दोगे उनको, तो आप मंथली देते हो सैलरी, या जब आपका इवेंट होता है आप तभी उनको पैसे देते हो। मंथली। है ना, मंथली पे करते हो। सो हम, और ये फिक्स्ड फी का भी एक मेथड होता है बेटा, जहाँ पे आप फिक्स कर देते हो कि आपको अपने लोगों को मंथली पे करना है या एनुअली पे करना है। एक फिक्स टाइम फिक्स कर देते हो, ठीक है। और ये कब होता है? व्हेन यू नीड टू मेक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देम, या फिर आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप क्रिएट करनी है उनके साथ, स्टेबिलिटी Yes, चाहते ma'am. हो, है ना? Whenever client think they need again and again, or they need a help of this agency, so just like यस, a salary, they are giving them the fixed price or यस, fixed fee. यस, या नाउ द नेक्स्ट वन इज फी बेस्ड और आर्ली बेस्ड। अब आर्ली बेस्ड का मतलब कितना हो गया कि जब भी उन्होंने जितना भी टाइम अपना स्पेंड किया है, उसके अकॉर्डिंगली वी गोइंग टू चार्ज इट। फॉर Yeah, एग्जांपल, agency can call somebody ki this particular person is good in jingles or a tagline, but this यस, person will charge hourly. किसी स्पेशलिस्ट को बुला रहे हैं। हाँ, अब कभी ऐसा होता है ना, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं आपके, है ना, या आप कभी वर्कशॉप्स वगैरह अगर आपने अटेंड करी होती है, तो वहां पे आपके लिए रिसोर्स पर्सन आते हैं जो सिर्फ 1 1 घंटे के लिए आते हैं, है ना, अपना सेशन लिया और फिर वो चले जाते हैं। तो उनको हम, जितना टाइम उन्होंने हमारे यहाँ पे, जितना टाइम उन्होंने सेशन लिया, उसी सेशन के लिए तो हम उनको पे करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is hourly fee is. Now the project based fee. अब प्रोजेक्ट बेस्ड फी कैसे हो सकता है? मैंने आपको बोला कि आपको ये प्रोजेक्ट बना के देना है। अब जब आपने वो प्रोजेक्ट बना दिया, तब मैं आपको पे करूंगी, ठीक है। अगर मैंने आपको पूरा ही बोल दिया ना कि फॉर लेट्स से आप जैसे फ्लाईओवर्स बनाते हैं, है ना, मेट्रो रूट क्रिएट करते हैं। अब मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको हरियाणा में किसी 2 सिटीज को कनेक्ट करना है। सो तब दिस इज योर प्रोजेक्ट, आपको ये कंप्लीट करके दो मुझे। तो जब आपके वो 2 सिटीज को कनेक्ट कर दोगे, मेट्रो आपकी चालू हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको फिर पे कर दूंगी, ठीक है। अब नाउ ड्यूरिंग यू द प्रोजेक्ट थिंग, जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, तो उस टाइम पे मैं आपको पे नहीं करूंगी। वो उसमें तो आपको खुद से ही पैसा लगाना होता है। तो ऐसे जैसे आप टेंडर्स लेते हो, है ना, गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं जब आप फिल करते हो, या कंस्ट्रक्शन का केस होता है, जब आप कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कर रहे होते हो ना, तो उसमें आपको खुद का पैसा लगाना होता है। एंड व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज डन, देन द ओनर विल प्रोवाइड यू द मनी, ठीक है। और वो 1 टाइम के लिए ही होती है। तो जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। एक जो फिक्स अमाउंट जो आपके साथ पहले डिस्कस किया गया होता है, जो फिक्स किया गया होता है।
जिसपे अग्रीमेंट हुआ होता है. Is it clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Is there any doubt? No, No, ma'am. ma'am. Now comes the modern methods. ठीक है. मॉडर्न मेथड में क्या क्या चीजें हमारी आ सकती हैं. फर्स्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड. अब हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हम सेल्स इंक्रीज हुई नहीं हुई, ब्रांड अवेयरनेस हुई या नहीं हुई, लोगों ने देखा, नंबर ऑफ इम्प्रेशंस बढ़े या नहीं बढ़े, है ना, उसने लीड जनरेट करी नहीं करी, प्रोस्पेक्ट बायर्स इंक्रीज हुए या नहीं हुए. सो एवरीथिंग वी गोइंग टू चेक. Yes, ma'am. राइट. देन इंसेंटिव बेस्ड. अब हम उनको इंसेंटिव भी देंगे. इफ यू हैव सम बीपीओ कंपनीज में जब लोग काम करते हैं या सेल्स कंपनी में जब लोग काम करते हैं, उनको सैलरी तो मिलती है, प्लस जब वो एक सेल कर देते हैं तो एडिशनल उनको एक कमीशन या इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है ना. इफ somebody इज वर्किंग इन सम सेल्स कंपनी, दे आर अवेयर अबाउट इट. अगर आप सेल्स की जॉब करते हो ना, हमेशा ये बोलते हैं कि सेल्स की जॉब थोड़ी हार्ड तो होती है, अदरवाइज होती बेस्ट है. बिकॉज यू हैव द थिंग कि आप एक्स्ट्रा भी अर्न कर सकते हो. सैलरी तो आपको मिलती ही मिलती है. अगर एक सेल भी कर दी या 2 सेल करती है, देयर आर सम टारगेट्स इन इट. सो मंथली वाइज वो चेंज होता है. और आप जब भी कोई भी सेल करते हो ना बेटा, उसमें आपको उनका कमीशन मिलता ही, कमीशन सॉरी इंसेंटिव मिलता ही मिलता है. अगर Yes, आप टीम ma'am. लीड हो और आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, अगर वो भी सेल कर देते हैं तो आपको भी मिलेगा एज अ टीम लीड. और सेम विद द सम इंश्योरेंस कंपनीज, है ना, जब मेडिक्लेम करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, तो जब भी वो जितनी भी एक पॉलिसी करते हैं, उस पॉलिसी पे उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, इररिस्पेक्टिव की उनकी सैलरी है. फॉर लेट्स से इफ आई एम अ वर्कर इन सम सेल्स कंपनी, मेरी मंथली पे उन्होंने 30,000 फिक्स कर रखी है. ठीक है, तो 30,000 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. प्लस अगर मैंने एक सेल कर दी तो उसका सम इंसेंटिव अमाउंट इज फिक्स्ड, कि अगर आप एक सेल करते हो तो कितना परसेंटेज मिलेगा. ठीक है. सो वो एडिशनल मेरी सैलरी में ऐड ऑन होता रहेगा, और फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ आई विल बी गेटिंग माय सैलरी प्लस द इंसेंटिव. ठीक है. Yes, ma'am. नाउ वैल्यू बेस्ड कॉम्पेंसेशन. A value based, as we are aware about what the value is, the amount that the person is spending. So उसको spend करने के बाद कितनी satisfaction provide हो रही है, that satisfaction is known as the value. ठीक है. So on the basis of that, we are going to pay to the agency. For let's say आपने उनको एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने के लिए दिया, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्रिएटिविटी उठा के लिया है, जैसे कि ज़ूज़ू एड, है ना, वोडाफोन की. तो वोडाफोन ने जैसे ज़ूज़ू एड शोकेस करी, तो हमेशा हर कोई आप देखते हो तो ह्यूमंस को यूज करता है, लेकिन उन्होंने एक्स शेल्स को यूज किया, क्योंकि उनको अलग बनानी थी, यूनिक कुछ क्रिएट करना था, क्रिएटिविटी लेकर आनी थी. उन्होंने बहुत दिमाग लगाया इसमें, इनोवेशन लेकर आए वो, है ना. तो जब उन्होंने प्रोडक्ट रेडी किया होगा, तो द ओनर विल गेट अमेज्ड बाय इट, है ना. हो सकता है जितना अमाउंट वो पे करो, वो सोचे कि नहीं, ये तो मुझे तो इसके लिए और ज्यादा पे करना है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी बना दिया आपने. राइट. कई बार ऐसा होता है ना, जितना आप अमाउंट पे कर रहे होते हैं, जितना आपको, जितनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाती है, उस हिसाब से आपको लगता है नो, वी आर चार्जिंग देम लेस. So that is known as the value based compensation. The value you are getting from the work, accordingly you charge them, or accordingly you pay them. Okay. Yes, ma'am. Now the hybrid system. अब हाइब्रिड में क्या हो सकता है, मल्टीपल मेथड्स आप यूज कर सकते हो while providing them the compensation. आप कमीशन का भी यूज कर सकते हो, आप इंसेंटिव्स का और बेस फी का भी यूज कर सकते हो, आप परफॉर्मेंस का बोनस भी यूज कर सकते हो. तो दे आर डिफरेंट इन नंबर्स ऑफ मेथड्स दैट यू कैन यूज व्हाइल यू वांट टू पे फॉर the work or the services the agencies are doing to you.
Now the traditional methods and the modern methods are clear to everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any doubt? No, ma'am. No. Just go through once. Done. Yes, ma'am. जल्दी जल्दी रीड करो। फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक आज ही करना है या Yes, ma'am. We think will do it today. है ना, तो हमारे फिर यूनिट ऑल द सिलेबस विल गेट कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट क्लास इफ वी गॉट देन we'll be doing our case studies. ठीक है। Done reading. Done, ma'am. So किसी को डाउट है? No, ma'am. Now we are on the last topic of our syllabus, that is legal, ethical and social aspects of advertising in India. तो हमें ये देखना है जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट होती हैं या एडवर्टाइजिंग जो हम क्रिएट करते हैं इंडिया में, अब उसका लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनके एथिकल व्यूज क्या है और उनके सोशल व्यूज क्या है या उनका पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लीगल कॉन्सेप्ट. सो लीगल इज रिलेटेड टू Law. law. Yes. What else? Confidential information. Hmm. Unsolicited use of trademark or copyrights, patents. Hmm. Basically, these are the intellectual properties. So when we talk about the legal aspects, तो legal aspects का मतलब होता है बेटा जब भी हम गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है चीजों में, वो लॉज बनाती हैं, कुछ एक्ट्स बनाती हैं जिनके थ्रू हमें चीजें सम फ्रेम वी गेट टू नो कि एक्चुअली हमारी बाउंड्रीज क्या है और हमें कितना काम करना है, कैसे काम करना है, सम गाइडलाइंस, है ना? और Guidelines. या yes, some guidelines they provide to us, और या फिर there are something जहाँ पे आगे जाके अगर हम कहीं अटक जाए, हमारे किसी भी चीज का सोल्यूशन ना मिल रहा, so we have our laws, we have our policies जिनको हम रेफर करके अपनी चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं. For let's say
अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हो ना, व्हेन यू क्रिएट अ कंपनी के भी लॉज हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, तभी आपकी कंपनी कंपनी कहलाएगी, सील होनी चाहिए, लोगो होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है उन्होंने। ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाल रखा है उन्होंने। अगर हम एमएसएमईज का देखते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, फार्मर्स को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने एक्ट निकाल रखे हैं। सम पॉलिसीज दे हैव मेड, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज उन्होंने मेंटेन कर रखी हैं, क्रिएट कर रखी हैं। सो बेसिकली जब भी पॉलिसीज, कुछ फ्रेमवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लॉज को मेंटेन किया जाता है ना। सो उनको हम बोलते हैं लीगल एस्पेक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट चीजें करती है, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग मस्ट कंप्लाई विद वेरियस लॉज टू प्रिवेंट डिसेप्टिव, अनफेयर और हार्मफुल प्रैक्टिसेस। अब चीज बताओ, क्या सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है? Or let it get it short. You require a license or a permission from government for doing startup of anything. Yes, ma'am, we do. Okay. अगर आपको एक नॉर्मल अपने घर के बाहर शॉप खोलनी है तो क्या उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है? No, ma'am. लेकिन No, अगर ma'am. आपको वाइन शॉप खोलनी है, लिकर शॉप खोलनी है, उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. टोबैको का है कुछ, उसके लिए रेलवेज का है, या सब पब्लिक सेक्टर्स, है ना, इंडस्ट्रीज, या रेलवे इंडस्ट्री जो है हमारी, अभी भी गवर्नमेंट रूल करती है उसको। क्या प्राइवेट लोगों को दे सकते हो, है ना। मैम ऐसे बेच देते कई लोग ऐसे ही। ड्रग्स का होता है, ड्रग्स इन द केस ऑफ केमिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। लोगों को केमिस्ट शॉप चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, राइट। सो दीज आर, अब ये क्यों है, हमें कैसे पता लग रहा है कि हमें इन सेक्टर्स को स्टार्टअप करने के लिए, या इन चीजों को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली, या इन बिजनेस में एंटर करने के लिए हमें ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है? These बिकॉज are some समहाउ गवर्नमेंट ने guidelines पॉलिसीज बना रखी हैं, है ना। provided by. Yes, yes, Government ma'am. have introduced some policies, some guidelines for these sectors. If you want, you can't make some you can't open chemist shop, है ना. You can't deal in drugs, you can't deal in Yes, ma'am. alcohol, you can't deal in tobacco unless and until you have a permission from the government. ठीक है. Ma'am, I Consumer के think in all साथ sector we need नहीं. a license. Either it's बेटा हर outside चीज or में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, नो, हर चीज में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है गवर्नमेंट के साइड मैम, से. बट सर्टेन शॉप के लिए चाहिए होगी, जैसे फूड में भी चाहिए होती है। इफ यू हैव अ रेस्टोरेंट, उसके लिए डिफरेंट होता है कि ये सिटिंग है या अब नहीं है, वो उसके लिए सब अलग पता है, होता है। उनकी क्वालिटी चेक होती है. नहीं उसके मैम, लिए आपको लाइसेंस अगर होता है। लाइसेंस, आई डोंट थिंक सो रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाइसेंस होता है. यस मैम। उसमें तो क्वालिटी इंस्पेक्शंस होते हैं. वो मैम अलग अगर होता है, आपको बट कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉर्म करनी होती है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग या यूनिट्स या फैक्ट्री सेटअप आप इंडस्ट्रियल एरिया में ही कर सकते हो. नहीं मैम, एमसीडी वगैरह सबके लाइसेंस चाहिए होते हैं अगर कोई शॉप खोलनी होती है ना, जैसे फूड का ही, जैसे रेस्टोरेंट का के लिए भी उसके लिए मैम चाहिए होती है। और वो टाइम टू टाइम रिन्यू भी कराना पड़ता है। रिन्यू भी होता, हाँ, लाइसेंस आपको टाइम टू टाइम रिन्यू तो कराना होता है, दैट टाइम अवेयर. So I'm not aware about in the case of the restaurant, but बाकी की जैसे ये चीजें हैं जो पब्लिक सेक्टर ही रूल करती है, वो अभी प्राइवेटाइजेशन उन्होंने नहीं करी है इन दीज सेक्टर्स. सो उसके बारे में मुझे है नॉलेज, बट आई थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. आई गोना स्टडी ऑन इट आल्सो. नहीं मैम, चलो. फायर देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर रेस्टोरेंट आल्सो कि उसमें किस मतलब अलग अलग लाइसेंस होता है। दिल्ली पुलिस से अलग लेना पड़ता है और एमसीडी का अलग होता है। देयर इज अ स्पेसिफिक ऑफिस आल्सो इन दिल्ली इन साउथ एक्स, जहाँ हाँ पर बेटा, ये वो सारे तो लाइसेंस। see, वो चीज तो आई अंडरस्टैंड, वो तो आई नो.
है ना? जब आप अगर आपको लो आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको कोई नॉर्मल शॉप ओपन करनी है, ठीक है? अब नॉर्मल शॉप इफ यू हैव द लैंड यू कैन ऑपरेट, लेकिन अगर आपको कोई बिगर लेवल पे खोलना है तो उस चीज के लिए तो आपको रिक्वायरमेंट है। अब आप रेस्टोरेंट अपने घर में तो नहीं खोल सकते ना, वो तो आपको मार्केट मैम में ही घर में खोलना तो पड़ेगा कोई भी नहीं खोल सकते क्योंकि वो रेसिडेंशियल एरिया में आ जाता है, तो या गवर्नमेंट वो भी अलाउ नहीं रेजिडेंशियल एरिया करेगी। में आती है, ठीक है? हाँ। लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है या फिर अगर आपको कोई शॉप भी ओपन करनी होती है तो आप मार्केट सेक्टर में ही कर सकते हो, है ना? जहाँ राइट पे मैम। जैसे हमारे यहाँ पे हुड्डा की मार्केट होती है, तो हुड्डा की हम्म। मार्केट में ही यू आर अलाउड टू ओपन अ शॉप और यू आर अलाउड टू ओपन समथिंग रिलेटेड टू द स्टार्टअप और समथिंग, है ना? वो आप घर पे नहीं कर सकते। राइट मैम। लेकिन ऐसा होता है कि बैक गेट ओपन कर लेते हैं लोग, घरों में ही शॉप चलाने लग जाते हैं, ठीक है? उन चीजों के लिए तो नहीं रिक्वायरमेंट है, इवन हम्म। व्हेन गवर्नमेंट इज अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? लेकिन यस अब मैम। कमर्शियल वे में अगर आप कुछ भी सेटअप करो, फॉर दैट यू नीड अ रिक्वायरमेंट, फॉर हम्म। दैट लाइसेंस रिक्वायर्ड, तो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम्म। हम्म। ठीक है? सो इन केस ऑफ द यस मैम। ब्रांड्स, तो अगर आप कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हो तो ब्रांड्स के पास भी वो लाइसेंस, जब वो ब्रांड ब्रांड कब कहलाती है, जब उसके पास गवर्नमेंट की साइड से वो आ जाता है, क्लियरेंस आ जाती है ना? उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप हमेशा चेक करते हो रजिस्ट्रेशन वो इसलिए कराते हैं ताकि उनकी डुप्लीकेसी ना हो, है ना? उनको एक जीएसटी नंबर भी अलॉट किया जाता है। कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए यस मैम। उनकी, अगर वो फ्रॉड करें या 2 नंबर का कुछ भी ऐसा काम करें तो जीएसटी के थ्रू वो पकड़े जाएंगे। विल बी एबल टू लुक आफ्टर इट कि एक्चुअली वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? सो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्ट बनाया गया है, प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं, और रिलेटेड टू द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑल्सो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं, है ना? इफ यू आर डीलिंग इनटू समथिंग, so these things come under the legal aspect. Clear है? यस मैम। ठीक है? सेम एज द ड्रग्स मैजिक रेमेडीज, है ना? कुछ भी एडवर्टीज के रिगार्डिंग कुछ भी एडवर्टीजमेंट आते तो आप हमेशा देखते हो किसी में भी आप कंट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो, है ना? और अपनी तरफ से जो नॉर्मल ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसपे आप अपनी साइड से कुछ भी क्रिएटिविटी के चक्कर में कुछ भी नहीं शो कर सकते हो, यू नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस। आप सिगरेट की एड्स नहीं कर सकते हो, आप अल्कोहल की एड्स नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो you need to make sure कि what government have given the permission for, and accordingly you need to maintain it. Then come the cable television networks, उसके रिगार्डिंग भी रेगुलेशन है, एडवर्टाइजिंग का कोड दिया जाता है, ठीक है? सी इन द थर्ड पॉइंट ऑल्सो इट इज रिटन प्रोहिबिट कि यू कांट प्रमोट टोबैको, अल्कोहल, है ना? ऑब्सीन कंटेंट, रिलीजियस ऐसा कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं कर सकते हो, रेसिज्म नहीं कर सकते हो, मिसलीड नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों ने देखा होगा फेयर एंड लवली की एड आती थी तो पहले वो बोलते थे कि आप फेयर एंड लवली लगा के बहुत ज्यादा फेयर हो जाते हो, है ना? उस पर बैन हो गया। अब वो नॉर्मली यस मैम। क्रीम के जैसे यूज करते हैं उसको, व्हाई? बिकॉज वो दे फॉल्स हैव क्लेम चेंज कर द रहे हैं, नेम आल्सो। या दे हैव चेंज द नेम आल्सो, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे हमारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग में एज वेल। सिगरेट्स में, टोबैकोज में, फूड की सेफ्टी में स्टैंडर्ड्स हमें देखने पड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब जैसे गोल्ड, कोई गोल्ड फेक गोल्ड ना दे दे तो हॉलमार्क का आता है ना? हॉलमार्क का ही गोल्ड आपको परचेज करना चाहिए, एग्रोमार्क के ही प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए, आईएसओ सर्टिफाइड चीजें ही आपको कंज्यूम करनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक सर्टिफिकेशंस ऑफ द बॉडीज दैट गवर्नमेंट हैव बिल्ट जस्ट टू मेंटेन द जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, सो दैट मैन्युफैक्चरर्स आपके साथ आपको मिसलीड ना कर पाए और आपको गलत चीजें ना दे पाए, ठीक है? नाउ द एथिकल एस्पेक्ट्स। अब एथिकल एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है हमारी? एक्सप्लॉइट नहीं करें हम किसी को, ट्रस्ट रहे, ऑनेस्ट रहे लोगों के साथ, कोई भी ऑफेंसिव चीजें यूज ना करें, है ना? वायलेंस ना शो करें, कल्चरल इंसेंसिटिव रहे,
सॉरी, कल्चरल सेंसिटिविटी रहे, इनसेंसिटिविटी ना रहे, है ना। ज्यादा जंक फूड की या हार्मफुल प्रोडक्ट्स की आप नहीं कर सकते हो एडवर्टीजमेंट, है ना। आपने कभी देखी है क्रैकर्स की एडवर्टीजमेंट आते हुए? दिवाली पे क्रैकर्स बर्स्ट No, करते हो ma'am. ना, लेकिन No, कभी ma'am. कभी देखा है एडवर्टीजमेंट क्रिएट हो रही है क्रैकर्स की। सब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या कभी अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट आती है? सिगरेट सब पीते हैं, स्मोक करते हैं। हुक्का आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि फ्लेवर्ड हुक्का है। इनडायरेक्टली हम्म, आती है मैम टोबैको की। है ना, इनडायरेक्टली आते हैं, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं यस आती। मैम। और वो भी दिखाते हैं वो बट मैम नेगेटिव फिर ये भी एक्सपेक्ट तो मिसलीड कर रहे हैं, तो उस पे कुछ नहीं, बैन वगैरह नहीं होता? जैसे टोबैको कंपनियां हैं जो इनडायरेक्टली टोबैको का ऐड करती है, या फिर बहुत ड्रिंक्स भी है, अल्कोहल है जो इनडायरेक्टली ऐड करते हैं, तो वो भी तो मिसलीड ही कर रहे हैं। बेटा वो कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं शोकेस करते हैं, इफ यू हैव नोटिस्ड। हमेशा यही बताते हैं कि वो नेगेटिव आता है, और इसकी वजह से जैसे अक्षय कुमार कर रहा होता है ना, हाँ, वो कैंसर कंट्रोवर्सी शो तो कर होती है, रहा राइट होता है, मैम। हॉस्पिटल नहीं कर रहा होता है ना। तो वो हमेशा ये राइट। बताता है, वो डेटा जब हमने पढ़ा था, स्टैटिस्टिकल अपील वो यूज करता है ना एडवर्टीजमेंट में, कि वो नंबर ऑफ डेटा हम्म। या डेटा बताता है कि इतने % ऑफ पॉपुलेशन इज इंजर्ड बाय दिस थिंग और अफेक्टेड बाय यूजिंग टोबैको और कंज्यूमिंग टोबैको। ठीक है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट वो शो करते हैं, पॉजिटिव वे में वो कभी नहीं कर सकते। कभी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं कर राइट मैम। सकते हैं वो, कभी भी रेसिज्म को नहीं प्रमोट कर सकते हैं, कभी वायलेंस नहीं शोकेस कर सकते हैं। अगर वायलेंस दिखाएंगे भी ना, उसके बाद ये दिखाएंगे कि वायलेंस से ज्यादा बेटर है कि आप लोग हंसी खुशी रहो साथ में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द वैल्यूज इज एंड व्हाट आर द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है आपको इंडोर्स करने के लिए बुलाया गया और आप फालतू में लोगों को मिसलीड कर दो। नो, यू शुडंट डू दैट, है ना। इन्वायरमेंट के थ्रू भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको वो भी देखना चाहिए। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, कभी किसी को डिफेम नहीं करेंगे। सम इफ यू गाइस हैव गॉन थ्रू दैट एडवर्टीज दैट न्यूज, जिसने एक डिटर्जेंट ने दूसरे डिटर्जेंट का नाम खुले में ले दिया था, उसको अपने आप को प्रमोट करने के लिए। मैम टाइड। हम्म, है ना। तो अब उसकी वो एड नहीं आती है, वो एडवर्टीजमेंट उन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि वो डिमीन कर रहे थे दूसरी ब्रांड को। सो दे कांट डू दैट। सो फेयर कंपटीशन होना चाहिए, आप कभी भी डिफेम नहीं करोगे किसी को भी। ठीक है, आप फैक्ट्स के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो, आप वेग चीजों पे नहीं कंपेयर करोगे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोगों के साथ। इट्स नॉट कि बस आपको सेल करना है अपना प्रोडक्ट, तो आप कुछ भी सेल कर दोगे कुछ भी बोल के। यू शुड टेक केयर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स एज वेल। अगर वो इंसान आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहा है, तो उसका हार्ड अर्न मनी है वो। ठीक है, सो फॉर यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, कि अगर किसी ने पैसा खर्च करा है तो हम उसको उतनी वैल्यू भी प्रोवाइड करें, वो क्वालिटी भी प्रोवाइड करें। सिर्फ अपने आप से मतलब नहीं होता है, हमें हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव रखना चाहिए। और वो तभी होते हैं जब हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं लोगों के साथ। कॉस्ट है 10 रुपीज, वी आर चार्जिंग 20 रुपीज। तो वो 20 रुपीज एक बार देके चला जाएगा, वो 2 बार देके चला जाएगा, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ नहीं रहेगा फिर, when he get to know about it, राइट। और जब उसको ये चीजें पता लगेंगी, आपकी उसके साथ में इमेज भी खराब हो चुकी होगी। सो फॉर द लेटर ऑल्सो, आप कितना ही ट्राई कर लेना, वो आप पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करेगा, वो कभी आपके शॉप पे आएगा ही नहीं दोबारा, वो कभी आपके ब्रांड को यूज ही नहीं करेगा। So this is why it is required कि you should respect the other person, टारगेट ऑडियंस की चीजों को भी आप रिस्पेक्ट करें, उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहें, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी आप फेयर रहें, कोई भी डिमीनिंग चीजें ना करें, इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए भी आप अच्छी चीजें करें, जैसे CSR होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कि आप ठीक है, आपने प्रॉफिट अर्न किया, है ना। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपकी तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अगर आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो, सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए। तो 2% ऑफ द प्रॉफिट यू नीड टू गिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो आप इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? एथिकल और पॉलिटिकल, सॉरी, लीगल। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now the last one is social. Social is when we talk about the population.
ठीक है, जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, तब हम उसको सोशल बोल देते हैं। तो सोशल एस्पेक्ट्स क्या है हमारे, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है थ्रू एडवर्टीजमेंट, है ना, लोगों के मनों में, हाइजीन सेक्टर की रिलेटेड, एजुकेशन को बताना है ना। बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, जैसे मोदी जी ने चलाए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा है, रोड सेफ्टी का है, एंटी स्मोकिंग के होते हैं, जेंडर इक्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो मेनी कैंपेन्स रन किए जाते हैं। अगर आप लोग देखते होंगे, इससे नुक्कड़ नाटक भी होता है कभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इफ यू हैव अवेयर ऑफ, है ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल Yes, नीड ma'am. टू परफॉर्म समथिंग ऑन द रोड, है ना। अब वो कुछ ना कुछ तो उनका कॉन्सेप्ट होता है ना, कुछ तो उनका मोटिव होता है, तभी वो चीज उस शोकेस करते हैं, है ना। या तो सेफ्टी पे होता है, या फिर क्लीनिनेस पे होता है, या गर्ल्स Culture. के ऊपर में होता है, सेव गर्ल चाइल्ड वाला होता है। ठीक है, सो दे आर सम campaigns that need to be run for the betterment of the society or the people. देन कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ एक ही रिलीजन के लोगों के साथ डील करते हो, नो, मल्टीपल रिलीजन के साथ आपको डील करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप मना कर दोगे कि नहीं मैं तो हिंदू, मैं तो हिंदुओं के साथ ही डील करूंगा। नो, इफ यू आर अ पब्लिक फिगर यू नीड टू मेक रिलेशनशिप, और अगर रिलेशनशिप भी नहीं बनाती लेकिन आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। अब एक्टर्स होते हैं, दे आर द सोशल पीपल, है ना। अब एक्टर क्या एक ही रोल प्ले करते हैं, वो तो मुस्लिम्स का भी रोल प्ले करते हैं, क्रिश्चियंस का भी करते हैं, सिख का भी करते हैं, हिंदू का भी करते हैं, क्रिकेटर्स का भी करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कल्चरल सेंसिटिव भी आपको होना चाहिए, प्लस इंटीग्रेट भी आपको करना चाहिए। इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों का लाइफस्टाइल भी इनहेंस होगा, लाइफस्टाइल इनहेंस होगा तो आपकी कंट्री की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, है ना। कंज्यूमर को एम्पावर करना चाहिए, बेटर डिसीजंस लेने आने चाहिए उनको, जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट की गर्ल एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट इज गर्ल एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म आया था, तो व्हाट इज इट, सोशल चीजें हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग एज अ होल फॉर द कम्युनिटी, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट वन और द अदर पर्सन। अब नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो गए, मेटेरियलिज्म, है ना, स्टीरियोटाइपिंग या मिसलीड कर रहे हैं। व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग, अगर मैंने बोलना चालू कर दिया सो गए हो क्या सारे। नो मैम, No, जाग गए। ma'am. तो व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग, जल्दी बताओ। हम हिंदी में तो अंधविश्वास कहते हैं। नहीं बेटा, अंधविश्वास दूसरा होता है। स्टीरियोटाइपिंग इज लाइक जो फॉल्स क्लेम्स आप करते चले आते हो, प्रीकंसीव्ड नोशंस या प्रीकंसीव नोशन जो होते हैं आपके। अगर आपने बोला कि हम बोलते हैं ना कि ये कम्युनिटी तो है ही ऐसी, या सारे लड़के बेकार होते हैं, या सारे लड़के रात में बाहर घूमते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइपिंग है कि नहीं अगर बेटा ऐसी आपने है। एक को देखा तो आपने सबके लिए ये जजमेंट पास कर दी। एक यस मैम, वो माइंडसेट, सुपरस्टिशियस होता है, यस मैम, नेगेटिव अंधविश्वास। वो माइंडसेट अगर है। अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस। यस मैम, सॉरी। ठीक है, तो स्टीरियोटाइपिंग इज लाइक कि जब आप फॉल्स चीजें मानते आते हो। अब जैसे बोला जाता है कि लड़कियों को सर ढक के रहना चाहिए, है ना, घूंघट होता था पहले कि घूंघट करके रहना चाहिए घर की, अगर जो लड़कियां हैं, है ना, जब वो उनकी शादियां हो जाती है तो उनको घूंघट करना चाहिए। तो स्टीरियोटाइपिंग है, उसका रीजन क्या है, उसका तो कोई रीजन नहीं है ना, बस आप चाहते हो कि आपकी विमेन पूरे फुल कपड़े ये चीजें पहने। अब ऐसा थोड़ी है कि हमेशा से चलता आ रहा है तो वो चीजें चेंज ही नहीं होंगी। जब आप चेंज नहीं कर रहे हो तो मतलब स्टीरियोटाइपिंग चीजें आप कर रहे हो। सो फॉर दैट वो चीजें नहीं होनी चाहिए आपको। एज द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, एज द सोसाइटी इज चेंजिंग, यू ऑल्सो नीड टू चेंज योर माइंड एज वेल। ठीक है, मिसलीड नहीं राइट करना है मैम। आपको किसी को भी मटेरियलिज्म चीजों के लिए नहीं। अब हमेशा बोलते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए इंसान को, सिर्फ चीजों से प्यार नहीं होना चाहिए, इमोशन से प्यार होना चाहिए, लोगों से प्यार होना चाहिए।
लोग बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज हमें ध्यान में देनी चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट होती है, अभी भी हम बहुत चीजें नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। बच्चों को चॉकलेट्स खिलाना, मोबाइल फोन्स, ऐसी चीजें, तो दीज आर नॉट गुड फॉर द कंजम्पशन ऑफ द किड्स। बट टीवीज में एडवर्टीजमेंट्स में आता है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो बच्चों को मोबाइल फोन पहले दिन से दे दिया जाता है, फिर उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, है ना। फिर वो वही यूट्यूब चलाना, जब हमने 12th के बाद चीजें सीखी थी। आज इफ यू हैव नोटिस कि जैसे आप बच्चे थे, अब आप अपकमिंग जनरेशन जो अभी आ रही है वो बहुत एडवांस्ड है। शायद आपको Absolutely. फोन वही, आपको फोन चलाना 8th 9th क्लास में आया हो, वो अभी फर्स्ट सेकंड से ही फोन चलाते हैं। वाई? बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग, पेरेंट्स पे इतना भी टाइम ही नहीं है, तो उन बच्चे या जो नैनीज होती हैं या जो घर में रखते हैं, उनको चुप कराने के लिए बच्चा रोए नहीं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पकड़ा दिया। तो जब पकड़ा ही दोगे तो वो तो फेमिलियर हो ही जाएगा ना, उसको तो चीजें आ ही जाएंगी करनी यूज। ठीक है। शुगरी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं, तो शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट चॉकलेट्स की एड, ड्रिंक्स की एड, सब में एडेड शुगर होता है। पिज्जाज की एड, बर्गर्स की एड, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है सोसाइटी पे एडवर्टीजमेंट का, लेकिन सबका काम है। अगर हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो उनको भी अपना काम करना है, उनको पैसा कमाना है, इसलिए वो उस इंडस्ट्री में आए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको मिसलीड नहीं करना है लोगों को, आपको अपने प्रॉफिट के लिए आपको किसी का हार्म नहीं करना है। एंड वी ऑल आर अवेयर, यस एवरीथिंग हैज अ प्रॉस एंड कॉन्स, तो उस चीज के साथ तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। फॉर दैट वी नीड टू बी रैशनल, इसीलिए बोला जाता है कंज्यूमर नीड टू बी अ रैशनल कंज्यूमर, दैट ही और शी शुड नो एवरीथिंग इन एडवांस कि एक्चुअली चीजें क्या है। क्लियर इन्फॉर्मेशन वो खुद से घर से लेके जाएं, पूरा लैप करके जाएं, उसके बाद शॉपकीपर के पास जाएं, ताकि शॉपकीपर आपको पागल ही न बना पाए। बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द थिंग्स, यू हैव ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और द मार्केट। ओके, Yes, ma'am. so is it clear to everybody? Is there any doubt? No, ma'am, all Mm. clear. So we are done with our syllabus finally. हम Okay. खत्म हुए परीक्षा? हाँ जी बेटा, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। We had only 7 units, so we are done with it. मैम आपकी वो भी तो होगी क्लास डिवीजन? हाँ बेटा, रिवीजन क्लास होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, रिवीजन क्लास होगी। और अगर अब भी अगर कोई क्लास होती है तो वील गोइंग टू डिस्कस अ केस स्टडी। ठीक है। यस मैम। और हम रिवीजन भी करनी है, प्लस रिवीजन क्लास में तो ऑल द 5 यूनिट्स आर गोइंग टू कवर, 7 यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे, प्लस कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, वी लेफ्ट विद सम टाइम। देन केस स्टडीज एज वेल। ठीक है। एंड प्लीज अब तो पढ़ लेना, और अब क्वेरीज के साथ आ जाना, क्योंकि आई थिंक अभी तुम्हारा नेक्स्ट मंथ से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मैम 5 जनवरी से। डेट शीट आ गई है? नहीं बस पता है। No, ma'am. ओके, मिड इंटरनल्स तो चालू हो जाएंगे ना बेटा? मैम इंटरनल तो चैट जीपीटी से दे देते हैं, उसमें क्या देखना। हाँ, वाह 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 वाह, चैट जीपीटी से नहीं देखना होता है पढ़ाई, फिर हम पागल हैं जो पढ़ा रहे हैं तुम्हें 9 9 बजे तक? हाँ, मैम यूनिट 7 आपने 6 तक ही दिया है मुझे पीपीटी। तो ग्रुप पे 7 मैंने तो शेयर आज कर दिया। पढ़ना है ना। अच्छा, कोई नहीं। तो तुम्हें हर चीज एडवांस में क्यों चाहिए, इतने रेस्टलेस क्यों रहते हो तुम? हाँ, पता नहीं मैम। वर्क अपॉन इट। जब 6 यूनिट दे दी तो 7वीं यूनिट भी तो दे ही दूंगी ना, सब होगी तभी दूंगी। आज तो मुझे लगा कंप्लीट कि हुई, सारी आज ही कंप्लीट करी है। तो आज एक दिन में हमने 2 आवर्स में अपनी यूनिट कर ली, बिकॉज बहुत ही छोटी सी थी। ठीक है। So ओके। please, you all have the PPTs. Kindly go through it. Start मैम studying. इम्पोर्टेंट नहीं पता है कोई Please, इम्पोर्टेंट क्या क्या आएगा कुछ? क्या इम्पोर्टेंट मतलब क्या क्या करके जाए एग्जाम में? इम्पोर्टेंट? अभी भी तुम्हें इम्पोर्टेंट की रिक्वायरमेंट है? तुम्हें साथ साथ में तुम्हें रिवीजन कराया है। नहीं मैम वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे भूल गए कभी।
हाँ, कोई कोई कुछ इम्पोर्टेंट, सारा सिलेबस इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके मैम, थैंक यू. Yes. चलो, ठीक all है, the थैंक best यू मैम. everybody. Start थैंक यू फॉर studying. great Thank you, Please session. ma'am. बाय. comment as Take care. multiple queries you can come up. Take in the revision class, or if any class we got in between. Go through the SLMs, go through the PPTs, and start writing or jot down the points or the queries you come across. ठीक है? ओके मैम, Okay, ma'am. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bachcha. Good night, everybody. थैंक यू मैम. गुड नाइट. Good टेक night. केयर. Great for session. Bye.